Hello everyone, welcome all of you in our second online class of cybersecurity. Hope you and all your family members are fine and at home. Request all of you to follow this lockdown seriously and utilize this time in good direction. So now let us begin with today's class. So in last class we studied about threats to security and now we will continue it. First topic for today is espionage. So any idea what does espionage mean? So the slide shows that espionage and trespass. So any idea what does these two words means? Espionage. I guess some of you might have heard these terms: trespassing, espionage, what exactly it is. So basically, you must have heard about the RAW agency ISI of Pakistan, RAW of India, right? So what does these agencies do? So these agencies basically work as their spy network in different countries to obtain some information which can help the nation, right? So this is basically what does espionage means. So let's go through this first slide. So first slide says trespass, enter someone land or property without permissions, meaning it's simple that if you're entering anyone's premises or anyone's property without their permission, then it is a criminal offense and it is known as trespassing. Second says espionage. So it says the practice of spying or of using spies, typically by governments, to obtain political and military information. The same thing I explained you guys what exactly espionage means. So जैसे कि रॉ होता है ISIS, तो उसका एग्जांपल देता तो दैट विल बी नोन एज espionage. जो वो काम करते हैं, जो वो स्पाई करते हैं, जो वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर espionage. And the third point says broad category of activities that breach confidentiality. So we all are aware that what does confidentiality means, right? So what does confidentiality means? Just एक बार remind करो, थोड़ा सा brush up करो. So what does confidentiality means? Anyone? So you're not in class. If we would in class, then I would have asked you guys about this. So let's brush up in your mind. What is confidentiality? जब जो भी बात दो जनों के बीच होनी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन दो जनों के बीच शेयर होनी चाहिए, अगर वो किसी थर्ड अननोन या अनऑथराइज पर्सन के पास हो जाती है, चली जाती है, तो वो कॉन्फिडेंशियल नहीं बचती है, एंड दैट इज द ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी. So same thing is written under this point. The first one is unauthorized access of information, what I just explained you guys. Second one is competitive intelligence versus espionage. So what does competitive intelligence means? Competitive intelligence is basically intelligence or the information which is there for every single country, means that is to be provided to at each and every country. वो information होती है एक intelligence की, एक intelligence मतलब एक information जो कि intended user के पास ही होनी चाहिए. और espionage क्या होती है? Espionage is basically spying, जो अपने आप gather कर जाती है. Third one is shoulder surfing can occur in any case person is accessing confidential information. जैसे कि आप ATM में पिन डाल रहे हैं और आपका किसी ने पिन का पासवर्ड देख लिया, करेक्ट? दैट इज नोन एज shoulder surfing. Next point says control implemented to mark the boundaries of an organization, virtual territory giving notice to trespassers that they have encroaching on the organization cyberspace. So basically it is working as a firewall कि भाई साहब आप गलत ऑर्गेनाइजेशन का डेटा आप लेना चाह रहे हैं, आप एक्सेस नहीं कर सकते, आप इंटेंडेड यूजर नहीं है, तो आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये ट्रेसपास कर रहे हैं, आप यहाँ की पॉलिसीज को डिनाई कर रहे हैं. पॉलिसीज बना रखी होती हैं कंपनियों ने कि भाई हमारे ही एम्प्लॉय इसको यूज कर पाए, और कोई बाहर का आदमी अगर यूज करने के लिए उसमें एंट्री करना चाहता है तो उसको एरर मैसेज शो होता है. होप यू गॉट दिस. करेक्ट, yeah, you got that. Okay, let's move forward. Hackers use skill, guile or fraud to steal the property of someone else. So what does this mean? इसका मतलब हुआ कि हैकर जो है अपनी स्किल्स के थ्रू
या फिर झूठ बोल के किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन, प्रॉपर्टी मीन्स इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन आपकी चुराना चाहेंगे आपसे झूठ बोल के। जैसे कि बहुत सारे केसेस में होता है, लोगों के साथ फ्रॉड कैसे होता है, आपने देखा होगा ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं लोगों के साथ कैसे होते हैं, वो इन सब इसी का ही पार्ट है। वो लोगों से झूठ बोलते हैं कि आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है, आप अपने ये नंबर बताइए, सीवीवी कोड बताइए, पिन नंबर बताइए। So that is all under this espionage or trespass. Moving forward, so there are two skill levels among hackers. First one is expert hacker. So expert hacker is the person who has the good knowledge of the hacking. So he develops the scripts. वो खुद से स्क्रिप्ट बनाता है, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता है, और वो पर्टिकुलर जिस भी सिस्टम को अटैक करना है उसके लिए ही पर्टिकुलरली नई नई स्क्रिप्ट बनाएगा कि कैसे सिस्टम को तोड़ूं। फिर उसके बाद आते हैं उससे छोटे लेवल के हैकर, स्क्रिप्ट किडीज कहते हैं। उनके पास बहुत लिमिटेड स्किल सेट होता है, स्किल सेट मतलब कि उनको आइडिया नहीं होता कि हर नए सिस्टम को कैसे तोड़ना है, तो वो पुरानी स्क्रिप्ट जो एक्सपर्ट हैकर ने स्क्रिप्ट बनाई होती हैं उनका ही यूज करते हैं। नाउ फ्यू अदर टर्म्स आर देयर, क्रैकर जो नॉर्मल प्रोटेक्शन हटा देता है, अनऑथराइज्ड डुप्लीकेशन कर देता है। लेट्स से कि नकली आपकी जैसी एक और ईमेल आईडी बना दी आपके डोमेन के जैसी, लोगों को पागल बनाने के लिए। लेट्स से कि आज वैसे बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं, आपने अगर किसी को पता हो, जो एजेंसीज के कुछ लोग नकली बन के, जैसे विप्रो की आईडी हमारी मेरी कुछ आईडी है डैश डॉट डैश एट विप्रो डॉट कॉम लेट्स से, तो उनको वो these fraud people, what they'll do that they'll create some IDs similar to my Wipro ID, and what they'll do that they'll change some name or they'll add something in the domain, let's say uh, homewipro.wipro.tcs.com, to make people fool. They'll send fake online job messages to messages and emails to different people. They'll take money from them कि हम आपकी नौकरी लगवाएंगे, आप हमें इतना पैसा अकाउंट में डाल दो, हमारा जेन्युइन अकाउंट है विप्रो का, देखिए। तो पीपल आर नॉट अवेयर कि हाँ विप्रो की आईडी क्या है, तो दे विल सीइंग दैट ओ विप्रो इज रिटन इन देयर आईडी, तो ओके ओके दे आर डूइंग राइट थिंग। सो दिस इज द थिंग। सो व्हाट इज द फ्रीका? फ्रीका इज नेक्स्ट टर्म इज फ्रीका। फ्रीका मींस जो टेलीफोन आपको हैक करते हैं हमें फ्रीका बोलते हैं। देखा होगा आपने पुलिस वाले बहुत टेलीफोन हैक करवाते हैं, तो किसके थ्रू करवाते हैं? वो फ्रीकर्स होते हैं। अगर वो पुलिस के लिए हेल्प करते हैं, खुद के भी काम करते हैं बहुत सारे लोग जो हैकिंग का, लोगों के फोन हैक करने का, लेकिन बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। उसके लिए आपको बहुत सारी एक्सेस चाहिए नेटवर्क की। नेटवर्क इन द सेंस जैसे एयरटेल का आपको किसी को हैक करना है, तो एयरटेल की आपको सिस्टम के अंदर एक्सेस जरूरी है, और इनफैक्ट बहुत ज्यादा हाई लेवल की, तो दैट इज वेरी हार्ड। बट द थिंग इज पुलिस के लिए लोग करते हैं तो पुलिस एक्सेस दिलवा देती है उन्हें, बट इट्स नॉट इजी जॉब। लेट्स मूव फॉरवर्ड। So next one says information extortion. So extortion क्या होता है? सोचो, बहुत सिंपल वर्ड है। किडनैप करने के बाद एक्सटॉर्शन मांगता है किडनैपर, तो सेम थिंग इज देयर। यहाँ पे अटैकर ने आपकी इन्फॉर्मेशन चुरा ली है, और इट विल आस्क फॉर कंपनसेशन, that I'll not use your information, I need this amount of money, if you provide me the money I'll return back your information. But if you will not return the money, sorry, if you will not give the money, then he will not return the information and he will misuse it, or he can sell that information to our competitors. So next is sabotage or vandalism. So sabotage or vandalism is the thing, means किसी भी चीज को तोड़ फोड़ देना। वैंडलिज्म आप सबको पता ही है कि क्या है, किसी चीज को तोड़ना, उसको खराब कर देना। So let's go through these points once. Individual or group who wanted to deliberately sabotage the operations of a computer system or business, or perform acts of vandalism to either destroy an asset or damage the image of the organization. तो इसमें क्या है कि कोई ग्रुप और या फिर इंडिविजुअल हैं जो जानबूझ के लोग आपका डेटा खराब करना चाहेंगे, आपकी सिस्टम खराब करना चाहेंगे, जिससे कि आपका नाम खराब हो, आपके बिजनेस का नाम खराब हो। So the second point says these threats can range from petty vandalism to organized sabotage. Vandalism is very small word and sabotage is a mass destruction.
वैंडलिज्म में क्या हुआ कि एक दो सिस्टम खराब कर दिए। सैबोटेज में क्या है कि सारा का सारा ही जितने भी सिस्टम थे और जितना भी डेटा था सब बेकार कर दिया, तोड़ फोड़ मचा दी। Third point says organization rely on image, so web defacing can lead to dropping consumer confidence and sales. किसी का नाम खराब कर दिया। साइबर क्राइम में बहुत होता है कि किसी अच्छी कंपनी का नाम खराब कर देते हैं, उनके बारे में झूठी बातें, फेक मैसेजेस, फेक न्यूज दे स्प्रेड एंड दैट विल डिफेम इट। पीपल डिफेम कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को with the use of cyber tools. So rising threat of hacktivist or the cyber activist operations. The most extreme version is cyber terrorism. Cyber terrorism basically आप लोगों ने सुना होगा कि ISIS जैसे ग्रुप था जो बहुत लोगों को जिन्होंने मारा, आपके सीरिया में, इराक में चल रहा है ये बहुत ज्यादा। तो उसको क्या करते थे कि इन्होंने फेसबुक पे, ट्विटर पे अपने अकाउंट्स बनाए जिससे लोगों को जोड़ते थे। इंडिया से भी काफी लोग गए थे जो कि ISIS में भर्ती होना चाहते थे, जो कि उसमें पार्ट बनना चाहते थे, बने भी कुछ लोग रिटर्न भी करना चाहते थे। अभी रिसेंटली केरला की एक लड़की वापस आना चाहती है इंडिया में, जो ISIS में पार्ट लिया था, जिसने जो मेंबर थे ISIS की। तो ये सब साइबर टेररिज्म है। So next is deliberate acts of theft. So what are the deliberate acts of theft? First one is illegal taking of another's property, physical, electronic और intellectual. मतलब सिंपल है कि आप किसी को इलीगली, आप किसी की प्रॉपर्टी या कोई भी चीज, कोई भी सामान इलीगली उससे ले रहे हो, छीन रहे हो। सो दैट विल कम अंडर थेफ्ट। आप किसी से कोई चीज छीनोगे तो दैट इज बेसिकली थेफ्ट, करेक्ट। जैसे थेफ्ट क्या होता है? डकैती। चोरी और डकैती तो अलग अलग चीज है, करेक्ट। चोरी आपने पता भी नहीं लगने दिया, आपने चुरा लिया। और थेफ्ट है जो आपने उसके सामने कोई चीज उससे छीन ली। So that is the basic difference. Second point says the value of information suffers when it is copied and taken away without the owner's knowledge. ठीक। तो जो मैंने बताया कि ओनर की कोई इंफॉर्मेशन है जो कि कॉपी कर ली गई या फिर उसके बिना नॉलेज के उसके सामने ले ली गई, उसके बिना उसके नॉलेज के उसके पीछे से वो चीज, उसकी इंफॉर्मेशन जो थी वो चुरा ली गई। फिजिकल थेफ्ट कैन बी कंट्रोल्ड। मतलब कि फिजिकल थेफ्ट क्या हो गया कि आपका कोई लैपटॉप का पूरा पूरा ना चुरा ले, आपका कोई कंप्यूटर सिस्टम से, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपका डेटा स्टोर्ड है किसी पॉइंट पे, तो उस पूरे चीज को कोई उठा के न ले जाए। तो उसके लिए क्या है कि डोर्स में वो लॉक करा जाता है, एक्सेस लगाई जाती है उसके अंदर, अलार्म सिस्टम लगाए जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करे जाते हैं। तो ये सब फीचर्स हैं। जैसे आप घर में भी अपनी कोई इंपॉर्टेंट चीज रखते हो, आपके कहीं डॉक्यूमेंट्स रखे हैं तो आप उनको अंदर सेफ में रखते हो। इंपॉर्टेंट चीज जो आपके घर में जितनी भी है, आप सब उसे संभाल के सेफली रखते हो, करेक्ट। तो सेम चीज है कि हाउ फिजिकल थेफ्ट कैन बी कंट्रोल्ड। लास्ट वन से इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट इज मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम टू मैनेज एंड कंट्रोल। आप ये बात आप भी मानेंगे कि घर में आपके सामने कोई चीज रखा है, आप उसको संभाल के रख सकते हैं, बट वही चीज अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखी है तो उसके लिए रखना थोड़ा सा मुश्किल है। वो आपको ऑनलाइन कहीं कहीं सेव करनी पड़ेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी चीज, मतलब मोबाइल में आपने अच्छी कोई चीज संभाल के रखी हुई है, तो वो मान ली चोरी हो गई या किसी ने उठा ली, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये चोरी हुई भी या नहीं हुई। सो नेक्स्ट पॉइंट इज deliberate software attacks. First point is when an individual or group design software to attack system, they create malicious code software called malware. So what is malware? तो इसमें क्या करते हैं कि malware एक लोग होते हैं जो, या फिर लोग हैं, कोई इंडिविजुअल है, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि आपके सिस्टम को डैमेज करेगा, आपकी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेगा, आपके सिस्टम को चलने नहीं देगा, आप कुछ भी काम करना चाहोगे वो करने नहीं देगा आपको। तो इसमें अलग अलग टाइप के मेलवेयर होते हैं। सो इट्स मैक्रो वायरस, बूट वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, लॉजिक बॉम्ब्स, बैकडोर और ट्रैपडोर, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स, polymorphic hoaxes. So we'll discuss about few of them. So first one says we'll be discussing here about first point is uh, virus is a computer program that attaches itself to an executable file or application.
सो बेसिकली वायरस वायरस आजकल वर्ड कितना चल रहा है, कोरोना वायरस। तो वायरस क्या चीज है, एक बार इसमें से आप पढ़ोगे तो आपको शायद थोड़ा कोरोना का भी कंसेप्ट समझ में आएगा। बिकॉज मेरे को भी थोड़ा सा, मैं भी अभी जब आपको पढ़ाने के लिए मैंने भी थोड़ा सा स्टडी करा था ये चीज, तो मैंने भी थोड़ा सा ध्यान दिया कि आई कैन रिलेट दिस वायरस टू कोरोना वायरस टू हाउ आई एक्सप्लेन इट टू यू नाउ। So first, go through it. Let's go through this once again. So first point says virus is a computer program that attaches itself to an executable file or application. तो बेसिकली हम कोरोना एग्जांपल कर लेते हैं। कोरोना का, कोरोना वायरस है, वो हमारी बॉडी में, आपको पता होगा, सबको पता है अब तो, कि वो हमारे सबसे पहले लंग पे इफेक्ट डालता है। करेक्ट। तो लंग पे इफेक्ट डालता है। लंग एक एग्जीक्यूटेबल थिंग है, हमारी बॉडी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ठीक। अगर हमारी बॉडी डेड बॉडी है, लेट्स से कोई डेड बॉडी है, उसको क्या, उसको कोरोना वायरस इफेक्ट करेगा डेड बॉडी को? नहीं करेगा, क्योंकि वो चल ही नहीं रही है। जो चीज चल ही नहीं रही है उसको वो इफेक्ट ही नहीं डालेगा। तो सेम थिंग इज देयर इन वायरस ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर चल रहा है तो ही वायरस अटैक करेगा। करेक्ट। किसी भी फाइल को करप्ट तभी करेगा अगर वो फाइल चलेगी, अगर वो चलेगी नहीं वायरस अटैक नहीं करेगा। Second says it can replicate itself usually through an executable program attached to an email। मतलब कि वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है। जो वायरस है वो कोई भी जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होगा, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम मतलब आपने किसी फाइल पे डबल क्लिक करा, वो फाइल खुली, तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल हुआ है। एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट है। प्रोग्राम क्या था? उस फाइल को खोलना। एग्जीक्यूट क्या हुआ? फाइल खुल रही है। इसमें एग्जांपल भी हुआ, जैसे अटैच टू एन ईमेल, कोई प्रोग्राम था वो अटैच था, मतलब प्रोग्राम था जो ईमेल में था, आपने उस फाइल को रन करा या आपने उस फाइल को सेव करा अपने सिस्टम में, तो उसके साथ आ गया। द कीवर्ड इज अटैचेस। अ वायरस कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन। तो जैसे कि आप पता है कि वायरस अकेला तो रह ही नहीं सकता, उसे किसी न किसी चीज के साथ अटैच होगा, तभी वायरस अपना काम करेगा। जैसे कि एग्जीक्यूटेबल फाइल, कोरोना वायरस का अगर फिर से एग्जाम्पल लें, अगर हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में लंग्स के साथ अटैच हुआ, लंग्स की फंक्शनिंग को उसने खराब करना शुरू करा, तो जो भी चीज फंक्शन कर रहा है उसके साथ वायरस अटैच होगा और उसकी फंक्शनिंग को खराब करेगा। बहुत ही सिंपल है। यू मस्ट प्रिवेंट वायरसेस फ्रॉम बीइंग इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सिंपल सी बात है कि हमको अपने जो भी सिस्टम में है कंप्यूटर, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने घर में भी है, हमको उसमें वायरस इंस्टॉल नहीं होने देना है। और बेसिकली हम उसके लिए क्या करते हैं? एंटीवायरस यूज करते हैं। तो सबको ही पता होगा, मैकेफी, नॉर्टन, कैस्परस्काई, और भी आते हैं काफी सारे, आप लोगों को पता होगा। आपके पास, सबके पास सिस्टम्स हैं, लैपटॉप सिस्टम सबके पास होती हैं, और किसी के पास नहीं भी है। वैसे मेरे पास खुद का पर्सनल नहीं है, मैं खुद ऑफिस का यूज करता हूँ, तो उसके लिए भी आप तो बिल्कुल सबके पास बिना एंटीवायरस के तो काम कर ही नहीं सकता। मोबाइल में भी सब मोस्टली डालती हैं आजकल एंटीवायरसेस। Next one is there is no foolproof method of preventing them from attaching themselves to your computer. That is basically true. It is reality कि हम हर वायरस को नहीं रोक सकते अपने कंप्यूटर में अटैच होने से। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपेयर्स वायरस सिग्नेचर फाइल्स अगेंस्ट द प्रोग्रामिंग कोड ऑफ नॉन वायरसेस। इसमें एंटीवायरस कैसे काम करते हैं, कभी सोचा है? जो एंटीवायरस कंपनी होती हैं उनके पास कुछ कुछ सिग्नेचर फाइल्स क्या होती हैं? वो फाइल्स जिनके अंदर एक वायरस की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उनके कोड, वो क्या किस बेसिस पे बने हैं, वो सब कुछ होता है। तो उनको उनकी हेल्प से वो जो कंपनीज हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनीज, वो उनको अपने उस सॉफ्टवेयर में ऐड करती हैं और उसको फिर हमारे सिस्टम में डालती हैं कि अगर ये चीजें रन हो रही हैं, ये चीज आप डिटेक्ट करोगे कंप्यूटर में, तो यू कैन catch that virus. Basically, how they perform catching of viruses. So hope you guys understood this thing. Next point है regularly update virus signature file is crucial. Correct. क्यों crucial है? अगर हमने virus signature file नहीं अपडेट करी, तो कोई नया वायरस लेट से आया है, किसी नॉर्टन ने कोई नया वायरस पकड़ा, तो नया वायरस पकड़ा तो टीम उनकी वायरस की, नॉर्टन की, उस चीज को, वायरस को फिक्स करने के लिए अपना कोई कोड लिखेगी, कुछ काम करेगी। लेकिन वो उस कोड को, जो वायरस का कोड था, उसे सेव करके सब लोगों को, जितनी भी ये एंटीवायरस बनाने की कंपनीज है, उनको बांटेगी, देगी पैसा लेके। और फिर वो लोग अपने सॉफ्टवेयर में जितने भी यूजर्स, जैसे मैकेफे को बेचा, तो मैकेफे उसने जितने भी यूजर्स हैं वो सब यूजर्स को अपने ये वायरस डेफिनेशन जो नया उसके पास आया वो सबके में ऐड करेगी, इंस्टॉल करेगी।
Next says a worm. What is a worm? We'll be discussing about worm. A worm is a computer program that replicates and propagates itself without having to attach itself to a host. जैसे वायरस अटैच हो रहा था, वर्म अटैच नहीं होता है किसी भी चीज से. बेसिक डिफरेंस समझ में आया? एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ. A worm is a computer program that replicates and propagates itself without having to attach itself to a host. ठीक, होस्ट के साथ अटैच नहीं हो सकती है, बस अपने आप को रेप्लिकेट करते रहते हैं वो. मोस्ट इनफेमस फॉर्म्स आर कोड रेड एंड निम्डा. ये नेम है. कोड बिजनेस मिलियंस ऑफ डॉलर इज डैमेज एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी. इसमें क्या है बेसिकली, जो वार्म अप के सिस्टम में इतनी तेज तेज रेप्लिकेट होता है कि वो सारा सिस्टम ऑक्यूपाई कर लेता है. उसकी मेमोरी, जो आपका रैम यूसेज है, वो इतनी ज्यादा बढ़ा देता है, इतनी ज्यादा यूसेज बढ़ा देता है कि आपका लॉस होता है बिजनेस का काफी. इसमें मिलियंस डॉलर्स लिखा हुआ है. तो प्रोडक्टिविटी मतलब कि आपका काम ही नहीं कर पाओगे, तो आप जब काम नहीं कर पाओगे तो बहुत ज्यादा लॉस, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में लॉस होता है अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्यूटर डाउन टाइम एंड द टाइम स्पेंट रिकवरिंग लॉस डेटा. reinstalling programming operating system and hiring of contracting IT personnel. So what does that mean? मीन्स फॉर्म से क्या दिक्कत हुई हमें कि हमारा हमारा जो डेटा लॉस हुआ उसको रिकवर करने में जो टाइम लगेगा. बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो, विंडोज जो हमें नहीं डालनी पड़ सकती है, कई बार पूरा सिस्टम ही दोबारा बनाना पड़ता है. उसके बाद हमारी इन्फॉर्मेशन, जो हमारी सी ड्राइव में लेट से कुछ इन्फॉर्मेशन थी वो गायब हो गई. बहुत सारे इसके नुकसान हो गए. नेक्स्ट वन इज ट्रोजन. तो ट्रोजन क्या होता है? सुना है? ट्रोजन हॉर्स सुना होगा आप लोगों ने, कुछ लोगों ने तो सुना ही होगा. So let's discuss. Trojan program describes themselves as use of computer programs or applications and can install a backdoor or rootkit on a computer. तो इसमें क्या होता है कि आपके पास मोबाइल में आप क्या आएंगे, आपको दिखाएंगे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनको इंस्टॉल करना और इसके बिना आपका काम नहीं होगा. आपको लगता है कि शायद ओके 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 यस यस यस, कई बार हम कर देते हैं. तो उसके बाद हमारे सिस्टम में ये बैकडोर क्या होता है कि हमारे सामने इंस्टॉल नहीं होते, बट इनके अंदर जो ट्रोजन हॉर्स है, जो वायरस होता है, एक काइंड का टाइप का वायरस है ये, जो हमारे बैकएंड में जाके इंस्टॉल हो जाता है या फिर मोबाइल के बेस में या रूट में कह सकते हो. रूट किट क्या होती है? जो बिल्कुल ही बेस होता है आपका. बहुत सारे लेयर्स के अंदर हमारा फोन की कोडिंग होती है. तो बिल्कुल जो स्टार्टिंग का जहाँ कोड लिखा जाता है, बिल्कुल जो आपका रूट होता है, कुछ लोगों को आपको पता भी होगा कि रूट कैसे होता है, फोन का रूट क्या होता है, आपके सिस्टम का रूट क्या होता है. तो वहां पे जाके ये बस जाता है और वहां से फिर आपका ये सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. तो backdoor or rootkits are computer program that give attackers a means of retaining access to the attack computer data. तो बेसिकली इसमें क्या है कि एक सिस्टम आपके मोबाइल पे या कंप्यूटर पे अटैच हो गया, आपको पता भी नहीं कि वो अटैच हुआ है, और आपका मोबाइल बंद पड़ा है, आपका सिस्टम बंद पड़ा है, तब भी वो लोग जो हैकर हैं, जो भी जिसने भी आपके सिस्टम पे ट्रोजन भेजा, वो आपका सिस्टम एक्सेस कर सकता है, इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है बिना आपकी परमिशन के. ये एक एग्जांपल दिया गया है. ट्रोजन हॉर्स अराइव्स वाया ईमेल और सॉफ्टवेयर सच एज फ्री गेम्स. आपके सिस्टम पे एक्टिवेट हो गया है. Trojan horse then releases its payload, monitors computer activities, install backdoors और transmit information to hacker. मतलब कि आपके सिस्टम पे गेम का आया कि भाई ये गेम है, आपको 10 रुपये 20 रुपये इसमें फ्री मिले, आप इसे खेलो. आपने खेल लिया, या आपको कोई लालच का सा ईमेल आया कि भाई ये सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा है, आप फ्री मूवीज देखोगे. आजकल टाइम ऐसा सब घर में सबको पता है कि ज्यादा टाइम घर लोग स्पेंड करेंगे, तो ऐसे ऐसे बहुत आपको मिलेंगे आते हुए. तो उससे क्या होगा कि वो आपके सिस्टम में बैकडोर एंट्री करेंगे और आपका डेटा भी चुरा लेंगे. तो कोई भी सस्पिशियस लिंक, या मैंने आपको बताया जो भी HTTPS ना हो उसको ना क्लिक करें लिंक को कभी भी. और आजकल तो HTTPS के भी बहुत फेक लिंक्स आ रहे हैं, तो इग्नोर देम. व्हाट्सएप पे आपके पास मैसेजेस आते होंगे कि फ्री नेटफ्लिक्स अकाउंट, फ्री फलाना अकाउंट, फ्री प्राइम अकाउंट, क्लिक हेयर, जियो ने दिया 500 GB डेटा, इसको फॉरवर्ड करें 10 लोगों. मत करना कभी भी, सब फेक है. So challenges Trojan program that use common ports such as TCP/80 और UBT15 are most difficult to detect. ये कुछ पोर्ट होते हैं. पोर्ट क्या होते हैं कि जहाँ से चीजें एंटर करती हैं सिस्टम में. तो ज्यादा डीपली तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, बहुत लंबा कंसेप्ट है पोर्ट्स का. तो TCP/80 और UBT53 ये कुछ
पोर्ट्स होते हैं, तो इनका काम होता है आपका जो भी डेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है, जो भी डेटा ऑर्गेनाइजेशन के बाहर आ रहा है, उनका ख्याल रखना। तो उनको इसके बारे में लिखा है कि डिफिकल्ट होता है इन दोनों पोर्ट से अगर कोई आ रहा है, मतलब ये HTTPS का यूज नहीं करते हैं ये दोनों प्रोटोकॉल, इसलिए डिफिकल्ट होता है इनको जज कर पाना, और इनके थ्रू अगर कोई ट्रैफिक अपने ऑर्गेनाइजेशन में आता है उसको पकड़ना। ट्रैफिक का मतलब हुआ कोई भी एक्सेस जो करना चाहता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को, आपके डेटा को। मैनी सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट पॉइंट इज मैनी सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स कैन रिकॉग्नाइज पोर्ट स्कैनिंग प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन लीविंग अ क्वेश्चनेबल पोर्ट। तो बहुत सारे फायरवॉल क्या होते हैं कि दीवार होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी दीवार बना देता है जिसमें कुछ पॉलिसीज लगा देता है कि भाई मेरे यूजर्स जिनकी आईडी इस तरीके की होगी सिर्फ वही अंदर आ सकते हैं, या फिर कोई और भी पॉलिसी लगा देगा कि इतने टाइम ड्यूरेशन तक ही आ सकते हैं, इस सिस्टम से ही आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, अगर इनके अलावा कुछ जाता है या आता है सिस्टम में तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं सॉफ्टवेयर। However, third point says, however, they prompt user to allow or disallow and users are not aware. इसका क्या मतलब हुआ कि वो यूजर्स को बोलेंगे कि अलाउ करो या डिसअलाउ करो। जैसे हम बहुत सारे एप्लीकेशन जब हम इंस्टॉल करते हैं तो आते हैं नहीं कि allow to access your contact, allow for access this, allow access your photos. So we are giving them permission to access our photos, our contacts and everything. So we should basically educate our network users. And next one says many Trojan programs, Trojan की spelling गलत है यहाँ पे, many Trojan program use standard ports to conduct their exploits. तो ये जो स्टैंडर्ड पोर्ट्स जो होते हैं, ये जैसे मैंने बताया TCP/80 और UPD50 उनका यही यूज करते हैं, ज्यादातर कोशिश करते हैं कि इनके थ्रू एंट्री मिल जाए क्योंकि इनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट वन से स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होगा, स्पाई से रिलेट कर सकते हैं। स्पाई क्या होता है, जासूस। तो आप पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा। स्पाईवेयर प्रोग्राम सेंड्स इन्फो फ्रॉम द इन्फेक्टेड कंप्यूटर टू द पर्सन हु इनिशिएटेड द स्पाईवेयर प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर। मतलब जिसने भी आपके सिस्टम पे कोई सॉफ्टवेयर डाला है, स्पाईवेयर डाला है, उसके पास आपकी इंफॉर्मेशन भेजना शुरू कर देगा। आपकी इंफॉर्मेशन उसके पास जाने लगेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। स्पाईवेयर प्रोग्राम कैन रजिस्टर ईच की स्ट्रोक एंटर्ड, मतलब कि कोई भी आप की भी प्रेस करोगे उसका भी आपके हैकर को पता लग जाएगा कि आपने क्या प्रेस करी है किस टाइम पे। एडवेयर बेसिकली क्या होता है कि पॉपअप्स आते हैं आपके सिस्टम पे। कई बार आपने देखा होगा कि आप मोबाइल से कोई गाना डाउनलोड कर रहे हो, कोई सॉन्ग डाउनलोड कर रहे हो, सो देयर आर मल्टीपल पॉपअप्स। कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो तो मल्टीपल पॉपअप्स आते हैं। तो यू कैन ब्लॉक दोज पॉपअप्स। हमारी इंटरनेट सेटिंग में पॉपअप ब्लॉक करने की सेटिंग आती है, फिर ब्लॉक देम अप। एंड ये भी एक तरीके का वायरस तो नहीं कहेंगे, तो वायरस तो नहीं होता, बट ये आपके सिस्टम को स्लो कर देता है। सो बेसिकली protecting against deliberate software, how to do, educating your users. Many US government organizations make security awareness programs mandatory and many private sector companies are following their example. Email monthly security updates to all employees, मतलब कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी मंथली हमारे सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए क्या क्या करती है, तो वो हमें ईमेल करती है मंथली कि अपनी हम सिस्टम्स अपडेट रखें, हम अपने मैकेफी या एंटीवायरस से अपडेट्स रखें। अपडेट वायरस सिग्नेचर, सेम थिंग जो मैंने आपको बताई। प्रोटेक्ट द नेटवर्क बाय इम्प्लीमेंटिंग अ फायरवॉल, कि हम अपने सिस्टम की फायरवॉल, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमें बना के दी एक फायरवॉल, वो पॉलिसीज, फायरवॉल क्या होगी, एक पॉलिसीज होगी, ग्रुप ऑफ पॉलिसीज की क्या किसको अलाउ करना है किसको अलाउ नहीं करना है, वो हमें हमेशा अपनी एक्टिव रखनी चाहिए, जिससे कि कभी भी हम ऑर्गेनाइजेशन का डेटा हम गलत हाथों में ना पड़ने दें। अवॉइडिंग फियर टैक्टिक्स। फियर टैक्टिक्स मतलब लोगों को डराना नहीं है। योर अप्रोच टू यूजर और पोटेंशियल कस्टमर शुड बी प्रमोटिंग अवेयरनेस रेदर देन इंस्टिलिंग फियर। इंस्टिलिंग फियर का मतलब होगा कि हम लोगों के अंदर डर पैदा नहीं करना है, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करनी है। जैसे कि अभी भी कर रहे हैं हम कोरोना के केस में, कि हम लोगों को डरा नहीं रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम लोगों को डरा, हम उनको अवेयर करना चाहते हैं कि डोंट गो आउट, हाथ धोइए अच्छे से, हर 1-1.5 घंटे बाद हाथों को सैनिटाइज करिए, मुंह पे हाथ मत लगाइए अननेसेसरली, आंख नाक कान को मत छुएं। तो वी आर जस्ट मेकिंग पीपल aware. We are not instilling fear in them. Next one says when training user be sure to build on the knowledge they already have. जो आपको नॉलेज है हमें उसको ही थोड़ा और
बढ़ाना है, हम आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा अगर मैं आपको चीज़ें बताने लगूंगा तो आपको जो आती भी हैं आप उनको भी नहीं समझ पाएंगे, और नहीं बताऊंगा तो उसको तो आप सिर्फ ऊपर से ही जाने लगेंगी। Intellectual property is the ownership of ideas and control over the tangible or virtual representation of those ideas. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है कि ओनरशिप ऑफ किसी भी चीज की ओनरशिप, किसी भी चीज की ओनरशिप, जो वो आइडिया भी हो सकता है या कोई चीज भी हो सकती है। अगर किसी चीज की ओनरशिप है तो वो उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं एक बंदे की। मेरा कोई आइडिया है, मैंने किसी आइडिया के थ्रू, जैसे ये ऑनलाइन पढ़ाने का सिस्टम जिसने भी निकाला हुआ, ये उसका आइडिया था, ये उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, ये उसके थॉट्स थे जो उसने वर्ल्ड को दिए। करेक्ट। तो मैनी ऑर्गेनाइजेशन आर इन द बिजनेस टू क्रिएट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बाय ट्रेड सीक्रेट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स। आपको पता होगा ट्रेड सीक्रेट्स, जैसे कि कोरोना की दवाई अब चाइना ने अभी, आज ही मैं अभी एक ट्वीट पढ़ रहा था, उसमें था कि चाइना ने कोई चाइना के साइंटिस्टों ने कोई इसकी वायरस की एंटीडोट बनाया है, तो उसके बारे में पता था। तो वो ट्रेड सीक्रेट, जो दो देशों के बीच में ट्रेड होगा, वो सीक्रेट रखा जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। कॉपीराइट्स, किसी भी चीज़ के कॉपीराइट्स आपको पता होंगे कि कॉपीराइट्स का क्या मतलब होता है। कॉपीराइट्स होते हैं कि आपने जो चीज़ बनाई है उसके ओरिजिनल ओनर आप हो, अगर सेम उसकी जैसी चीज़ कोई और बनाता है तो आप उस, अगर आपने कॉपीराइट करा रखा है अपनी चीज़ का, अपने डेटा का या अपनी चीज़ का, तो उसका कोई बिना आपके परमिशन के यूज़ नहीं कर सकता। ट्रेडमार्क्स होते हैं, आपकी कोई कंपनी के लोगो ट्रेडमार्क कहलाता है। पेटेंट्स, दवाइयों के पेटेंट कराते हैं लोग। आपने कोई फाइंड करी है कोई चीज़, कोई नई चीज़ आपने फाइंड करी तो उसका पेटेंट कराते हैं। तो अगर सेम चीज़ वो कोई दोबारा फाइंड करता है तो उसको मना कर दिया जाएगा कि नहीं नहीं भाई, इसकी तो खोज पहले किसी और ने कर लिया है। सो कॉम्प्रोमाइज टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हम पढ़ रहे हैं आगे। मोस्ट कॉमन आईपी ब्रीचेस इन्वॉल्व सॉफ्टवेयर पायरेसी। आईपी ब्रीचेस होती है, आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर, नकली सॉफ्टवेयर बनाना। तो इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन और बिजनेस सॉफ्टवेयर अलायंस। ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सॉफ्टवेयर की ऑथेंटिसिटी देखते हैं कि ये सही है नहीं। प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पे जितनी आपको ऐप मिलेंगी सब इन ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको ये चेक कर, उस हर एप्लीकेशन को ये लोग चेक करते हैं कि ये ऑथेंटिकेटेड है या फेक तो नहीं है। Enforcement of copyright has been attempted with technical security mechanism. That means कोई भी कॉपीराइट किसी ने करा रखा है तो उसको चेक करेंगे कि अगर कोई उस चीज को दोबारा यूज तो, दोबारा सेम चीज तो नहीं बना रहा बिना, या फिर उसकी, जैसे मैंने कोई ऐप, लेट्स से कोई मेरी एक एप्लीकेशन है, मेरी एक एप्लीकेशन मैंने बनाई और सेम मैंने उसका कॉपीराइट करा लिया, सेम एप्लीकेशन किसी और ने बनाई, तो ये इन ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है कि उस चीज को चेक करेंगे कि भाई सेम एप्लीकेशन किसी और ने तो नहीं बना रखी, क्या इसका कॉपीराइट है, और क्या अगर कॉपीराइट है तो क्या जिस बंदे ने दोबारा एप्लीकेशन की उसने उससे बात करी थी कॉपीराइट की, क्या उससे कोई कॉपीराइट खरीदा था। फोर्सेस ऑफ नेचर, फोर्सेस ऑफ नेचर क्या हो गया कि नेचर की वजह से हमारा क्या नुकसान हो सकता है। तो फोर्सेस ऑफ नेचर फोर्स मेजर है, और एक्ट ऑफ गॉड्स आर डेंजरस बिकॉज दे आर अनएक्सपेक्टेड एंड कैन अकर विद वेरी लिटिल वार्निंग। जैसा कि आजकल चल रहा है, भगवान जी ने किसी को बताया नहीं था भाई कोरोना आने वाला है, आप तैयारी कर लो। हमें तो ये लग रहा था कि हमारी क्लासेस चलेंगी क्लास में, बट आज हम ऑनलाइन बैठ के मैं आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं अपने काम वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सारे टीचर्स आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोगों को पता नहीं था इस सब बारे में। So second says can disrupt not only the lives of individual but also the storage, transmission and use of information. इसमें सब पॉइंट्स यही लिखे हुए हैं, include fire, flood, earthquake and lightning as well as volcanic eruption or insect infestation, pandemic जैसा भी कोरोना वायरस पैंडेमिक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, सब नेचुरल डिजास्टर जिसे आप कह सकते हो। तो since it is not possible to avoid many of these threats, management must implement controls to limit damage and also prepare contingency plan for continued operation. तो जैसा कि आप देख रहे हो कि आपकी पढ़ाई कंटिन्यूस चल रही है, तो मैनेजमेंट ने प्लान बनाया है कि भाई कैसे बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। तो इसमें किसी ने प्लान दिया कि हम बच्चों के लिए ऐसे हम पीपीटी को प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसे हम लेक्चर्स प्रिपेयर कर सकते हैं, हम ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। तो दैट ऑल इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड।